नमस्कार। सभी आगंतुकों से निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य इस गंभीर बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष की थीम है वन लाइफ वन लिवर। इसी श्रृंखला में प्राइड और ILBS के संयुक्त तत्वावधान में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर जागरूकता सत्र का आयोजन किया जा रहा है। सत्र की शुरुआत करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को कि वो विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर जागरूकता सत्र में स्वागत भाषण के जरिए आमंत्रित अतिथियों का स्वागत करें। Honorable Speaker Lok Sabha Shri Om Birla ji, Honorable Union Minister of Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers Shri Mansukh Mandavia ji, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha Shri Harivansh ji, Honorable Members of Parliament, Director ILBS Dr. S.K. Sareen, officers from the Lok Sabha and Rajya Sabha secretariats, friends from the media, ladies and gentlemen, namaskar. I take this opportunity to extend a warm welcome to Honorable Speaker Lok Sabha, Shri Om Birla ji, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Shri Mansukh Mandavia ji, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, Shri Harivansh ji, and all Honorable Members of Parliament and distinguished dignitaries to the Parliament of India. I also take this opportunity to welcome Dr. S.K. Sareen, Director, Institute of Liver and Biliary Sciences, Delhi, an indefatigable hepatitis warrior, if there was one, whose team has taken upon itself the mission to rid this nation of the scourge of hepatitis. The theme for this year's World Hepatitis Day is One Life, One Liver. As is evident, the theme highlights the centrality of the liver in our health and well-being. Data shows hepatitis-related mortality at an unacceptably high level, given the fact that most of these precious lives could have been saved through immunization, screening, and timely intervention. In addition, a cause for consternation are reports from various parts of the world of acute hepatitis among children. In this scenario, the World Health Organization has appropriately designed a global strategy to reduce new hepatitis infections by 90% and deaths by 65% by 2030, in tune with Sustainable Development Goal number 3. It is time that we too further accelerate our efforts at eradicating hepatitis B and C by stepping up immunization efforts, bringing hepatitis care closer to
communities through our health services, and above all, by removing the stigma and societal discrimination that is widespread against people afflicted by the disease. I am hopeful that awareness building exercise such as the one today in the Parliament precincts will go a long way in our quest for attaining the noble objective of our national mission. With these words, I once again welcome you all to this event being jointly hosted by Pride and ILBS for the third year running in the Parliament of India, and convey my best wishes to Dr. Sareen and his team in their mission. Thank you. Jai Hind. अब आपको दिखाते हैं फैटी लिवर, कैंसर और हेपेटाइटिस से पीड़ित लोगों पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। वजह से ओनली निग्लेक्ट किया जाता था। दोस्तों, हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में जानिए, बताइए, इलाज कराइए और मिलके हराइए। हेपेटाइटिस हारेगा, इंडिया जीतेगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर इस जागरूकता सत्र में अब मैं अनुरोध करती हूं ILBS के निदेशक डॉक्टर S.K. सरीन से कि वो हेपेटाइटिस और लिवर रोगों के बारे में हम सभी की जानकारी बढ़ाएं।
I thank Almighty God, my late parents, and my teachers for having given me this day. Most Honorable Speaker साहब, हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब, डिप्टी चेयरमैन साहब, सारे पार्लियामेंट के मेंबर्स, ये हम लोगों के लिए एक बहुत शुभ दिन है कि आप लोग सब एक कॉज को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और मैं प्राइड का, उत्पल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शायद याद होगा अगर पिछले साल आपने अटेंड किया हो तो एक बहुत ब्रीफ है। लिवर आपके लिए वो सब करता है एज ए फैक्ट्री, राइट जगह पे राइट साइड में होता है आपके शरीर में, हाथ लगा के देख सकते हैं, और ये आपके सारे फूड को सिंथेसाइज करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, और बाइल जो पित्त बनाता है जिसके कारण पूरा आयुर्वेदा चला, पित्त या अग्नि, दो तरह के ब्लड हैं, एक आपका ब्लड जो चलता है और एक लिवर से आंतों और आंतों से लिवर। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट, और ये आपकी इम्यूनिटी, चेहरे का रंग, ये सब हेल्दी लिवर से ही है। एक तरह से सर ये अध्यक्ष है शरीर का, आपको समर्पित है सर। लिवर को नुकसान होता है फैट, अल्कोहल, सबको पता है, वायरस। अगर नुकसान हो तो हम आइटिस, हेपेटाइटिस कहते हैं। भारत लगभग दुनिया की 5 अगर डेथ हैं लिवर से, उसमें से एक कंट्रीब्यूट करता है। हमें इसे घटाना है। नॉर्मल लिवर में 5% से कम फैट है। अगर लिवर 1500 ग्राम का है तो 5% से कम है। पर अगर ज़्यादा खुराक या गलत कैलोरीज या जीन्स, अगर लिवर में 10% से ज़्यादा फैट है, डबल हो गई, तो फैटी लिवर है। आप कलर देखेंगे वाइटिश, लार्ज लिवर, और ये सारे बैक्टीरिया आपके बदल देता है। बैक्टीरिया ही आपकी बॉडी को आंतों के रन करते हैं, चाहे कैंसर हो चाहे कुछ। ये मुश्किल डायग्राम नहीं है, पर मैं 1 मिनट आपका चाहता हूं। तो सबसे पहले लिवर में फैट हुई, फैट के बाद में इन्फ्लेमेशन, आइटिस, हेपेटाइटिस, फिर लिवर सूखता है, वो स्टेज 3, स्टेज 4 में सिरोसिस, और उसके बाद में लिवर कैंसर। और एक 20 रुपए का टेस्ट, ALT का टेस्ट है, वो अगर बढ़ा हुआ है तो आपका लिवर हेल्दी नहीं है, पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, आप 2 मिनट लगाएं। आपका ब्लड शुगर, आप 55 साल के हैं, ब्लड शुगर आपका 95 है। आप बड़े खुश हैं, मेरी शुगर तो नॉर्मल है। पर अगर आपकी लिवर हेल्दी है तो जो आप खाना खाएंगे वो 2 यूनिट इंसुलिन से आपकी ब्लड शुगर 95 कर देगा, सिर्फ 2 यूनिट से। और अगर आप अनहेल्दी हैं, जैसा आप राइट में देख रहे हैं, मेरे राइट में, उस सेल्स वाइट वाइट बड़े बड़े हैं, ये सारे सेल्स में फैट है, इसमें इंसुलिन घुसती नहीं है। तो आप 20 यूनिट इंसुलिन, 10 गुना ज्यादा रोज इंसुलिन बनाएंगे, यूज करेंगे, तब शुगर 95। शुगर तो 95 है, पर अल्टीमेट बेसिस आपका सिग्नेचर गलत है, और इसको हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। पूरी ह्यूमन जिंदगी का एक रूल इंसुलिन रेजिस्टेंस है, चाहे कोई सी भी बीमारी आप जनरली लें। अगर आपका रोज इंसुलिन ज्यादा बनेगा, पैंक्रियास ज्यादा काम करेगा, तो खत्म हो जाएगा। हम लोग कहेंगे डायबिटीज हो गई है, और ये डायबिटीज इसलिए एक तरह से लिवर की बीमारी। जिन लोगों को डायबिटीज है उनको लिवर का सिरोसिस या कैंसर 3 गुना ज्यादा है। और भारत में अगर सर, हेल्थ मिनिस्टर साहब के लिए, अगर हम देखें कितने लोग लिवर कैंसर के हैं, तो करीब अब 39% ऑफ लिवर कैंसर्स आर ड्यू टू डायबिटीज। तो अगर लिवर में फैट है, एक तो डायबिटीज हो गई, बेचारा पैंक्रियास ज्यादा काम कर रहा है, पर वो फैट जो है वो गई कहाँ? लिवर से। आपने ब्लड टेस्ट कराया, भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, मेरा ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है,
वो आया कहाँ से? तो लिवर अगर भर गया फैट से तो स्पिल करके वो ब्लड में आया, आपने दवाई ले ली पर कारण नहीं पूछा। वही फैट आर्टरीज में गई तो ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, कैंसर्स, स्ट्रोक, बोन्स की कमी, गॉल ब्लैडर के स्टोन। तो शुरुआत आपका अगर फैक्ट्री का आउटपुट ही गलत है, फैक्ट्री क्या है? लिवर। और फैटी लिवर देयरफॉर सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का एक कोर है। हाई फैट इन द लिवर विल प्रीसीड, अगर आपको आज पता है तो 15 साल के बाद डायबिटीज या ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम 15 साल से पहले ही अगर हम सचेत हो जाएं तो शायद ये बीमारियां सारी बच जाएं। भारत में करीब 245 मिलियन से ज्यादा लोग हैं। अब आप अपने आप टेस्ट कर लीजिए, मैं समय बहुत कम है पर मैं चाहूंगा कि आप खुद ही आज ही टेस्ट कर लें, अभी बैठे बैठे, कि अगर आपके माता पिता को फैमिली में या आपको ओवरवेट है, आपको डायबिटीज है, या पेरेंट्स में ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी, लिवर डिजीज, कैंसर, या लेडीज में पॉलीसिस्टिक ओवरी, तो लिवर में फैट है, ये पक्का है। अगर आपका वेट, आपका हाइट -100 इज द नॉर्मल फॉर्म। जैसे गाड़ी का टायर है, आगे 32 हवा रखनी है कि 34, एक जरा सी भी हवा नहीं बढ़ाते आप अपने शरीर में बढ़ा लेते। तो हाइट -100 आपका होना चाहिए। 170 हाइट है, वजन 70 हो। और अगर हाँ फीमेल हैं तो, या फैमिली में अगर कोई बीमार है तो 5 और घटाएं, हाइट में से 105। फिर कभी टेस्ट का समय मिले, नीचे स्पीकर साहब की मेहरबानी से एक कैंप है, वहां पे फाइब्रोस्कैन हो सकता है, ब्लड टेस्ट, अगर ब्लड में SGPT हाई है, लिपिड्स हाई हैं, शुगर हाई, तो फैटी लिवर डायग्नोसिस इज 5 मिनट्स जॉब। फाइंड आउट एंड लर्न अबाउट इट सर। और मैं बहुत सम्मान के साथ कहूंगा सर, पिछले 3 दिन में 42 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 42, हम लोगों के लिए इतनी फख्र की बात है। और 42 मेंबर का मतलब हुआ सर एक 25 लाख को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 10 करोड़ लोगों तक ये मैसेज आपके थ्रू पहुंचा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। सेल्फ टेस्ट में याद रखें, आपकी वेस्ट 90 से कम मेन की और फीमेल की 80 से कम है। मेरी अपनी थोड़े 2 साल के परिचय में मैंने देखा कि हेल्थ मिनिस्टर साहब हमारे जो हैं शायद 90 से भी कम पे आ गए हैं, मंडाविया सर। ये ही हैज डन ए ड्रामेटिक चेंज, मतलब एक रियल हेल्दी मिनिस्टर। और ये मैं चाहूंगा कि डोंट पुट जीन्स ऑन टू यू, फिट इन टू जीन्स। टीच योर टेलर, टीच योर चिल्ड्रन। सेल्फ टेस्ट में अपने गर्दन पे हाथ लगा के देखें कि कोई आपके मस्सा या ऐसी काली लाइन है, वो तो आपको नाई बता देगा। तो टीच योर बार्बर्स, बट इफ यू हैव एनी ऑफ दीज वॉट्स यू आर लाइकली टू हैव फैटी लिवर। अब कैसे ठीक करना है? बहुत छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एटीट्यूड, माइंडसेट। भाई क्या होता है, 3 लोगों में से एक के है, अब जैसे यहाँ 200 लोग हैं, होगा हमारे भी नहीं। चेंज योर अप्रोच, इट्स ए फायर अलार्म एक्सटिंग्विश। चेंज एक्सरसाइज, खुली हवा में या जहां भी चाहें। एक्सरसाइज मीन्स स्वेटिंग शुरू हो उसके बाद 30 मिनट। और मैं बहुत अनुरोध करूंगा कि इसको प्रयोग में लाएं, चाहे दौड़ें दैट इज, और चाहे आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें। और एक बहुत अनुरोध है कि नए पार्लियामेंट में एक जॉगिंग ट्रैक बन जाए तो लोगों का मन भी ठीक रहेगा सर, और हेल्थ तो रहेगी सर। एक डाइट के बारे में आपको सबको लगता है क्या खाएं, पहले तो हरिनाम, वेजी, कवि सबके पता लगता है, अब नहीं मालूम। बट लेट मी टेल यू, यू बिकम व्हाट यू ईट, हाउ मच यू ईट एंड व्हेन यू ईट। What you eat, I have suggested millets, very very good. Colored vegetables, apple is your best friend, no doctor will be needed. Walnuts, highest amount of your, it is better than even having your fish. It has all the omega fatty acids. Haldi,
काला चना एंड घी। घी सबसे बढ़िया चीज है, पर पचाना जरूरी। और हाउ मच टू ईट, डोंट टेक ए डिनर प्लेट, टेक ए डेजर्ट प्लेट। एंड व्हेन यू ईट, मे बी जैनीज एंड अदर्स, हिंदूज हु आर ईटिंग एट 6 or 7। एक और आपसे अनुरोध रहे, ग्रीन किचन अगर बन जाए सर नई पार्लियामेंट में, जहाँ पे ये हेल्दी चीजें मिल जाए, तो दावते जिगर हो जाएगा। लिवर ठीक तो सब ठीक रहेगा। लूज वेट, लोग पूछते हैं कि कैसे ठीक करें। सिंपल फॉर्मूला है, जितना वेट है, अगर फैटी लिवर है 10% घटा लें। शर्तिया लिवर का फैट कम होगा, थोड़ा फाइब्रोसिस भी कम होगा। तो अगर एक और दरखास्त है कि साहब जहां एंट्री और एग्जिट पॉइंट हो पार्लियामेंट में, शायद कहीं कहीं एक वेइंग स्केल लग जाए तो लोगों को अंदाज हो जाएगा। वैसे तो सब में बहुत भार होता है सारे एमपीज में, बट लाइट वेट एंड हैवी वेट। एंड लास्ट इज ए सोशल चेंज। ये बहुत जरूरी है। अगर आपके बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन ओवर वेट हैं, टेल देम नो किड्स, स्टॉप प्रोडक्शन। आगे आने वाला खानदान ठीक रहे। इसके फायदे क्या है नेशनल लेवल पे? चूंकि हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, मैं 1 सेकेंड इसमें लूंगा साहब। अगर हम फैटी लिवर को देखें, कोरिया में 3 मिलियन कोरियंस को फॉलो किया गया सर 2009 से 13 तक। कई लोगों के फैटी लिवर नहीं था। जिनको नया फैटी लिवर डेवलप हुआ 2009 के आसपास, उनको डायबिटीज दुगनी हुई, हार्ट अटैक 13%, ब्रेन स्ट्रोक 17% और 46% डेथ हुई। और जिन लोगों का फैटी लिवर घट गया, रेड में देखिए, जिनका फैटी लिवर रिग्रेस हो गया, उनमें डेथ 17% घट गई। नेशनल लेवल पे है सर। तो इसलिए चाहूंगा कि हर हेल्थ प्रोग्राम में दरखास्त है कि एक फैटी लिवर स्क्रीनिंग हेल्थ प्रोग्राम्स में अक्रॉस कंट्री ली जा सकती है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बहुत बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव लिया। वर्ल्ड में भारत नंबर 1 पे पहुंचा फैटी लिवर स्क्रीनिंग में, पर इसको इम्प्लीमेंट करना और आगे 1 दशक में अगर हम सारे एनसीडीज कम कर लें, डायबिटीज 2% कम हो गई, बीपी 2%, तो शायद भारत बहुत सुखी कंट्री बन जाएगा। हमारा दूसरा दुश्मन अल्कोहल। ये कार्टून कंपटीशन हुआ था, ये हमारे करीब 700 फॉरेनर्स ने पार्टिसिपेट किया। यूक्रेन का ये बेस्ट आया। वो कहता है, दिमाग कहता है शराब पियो, और लिवर का क्या हाल है। 1990 में हेपेटाइटिस बी 50% से लिवर सिरोसिस था। आज अल्कोहल से 44% सिरोसिस। हमें एक कैंपेन चाहिए, सारे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की मदद चाहिए। सबसे साधारण जो लोगों को पता है हेपेटाइटिस बी करीब 40 मिलियन में है सर, और 2 से 3% इंडियंस। याद रखें, एक दिन में हेपेटाइटिस बी से जितनी डेथ हैं, उतनी HIV से 1 साल में। हमें प्रोटेक्ट करना है। ट्रांसमिशन माँ से बच्चे को है, ब्लड से है, सलाइवा, आपने देखा स्टोरीज जो बताई गई, या सेक्सुअल ट्रांसमिशन। और हम इसको जीत सकते हैं सर, जीतना है। सारे नए बच्चों को पैदा होने को वैक्सीनेट करें, एडल्ट्स को भी लगाना है सर। यह ना सोचें कि हम नहीं लगाएं, कभी ब्लड चढ़ सकता है, जैसे उस आदमी को जिसको हुआ था मैलिग्नेंसी। और जितने इन्फेक्टेड है उन्हें ट्रीट करें। नेशनल प्रोग्राम है सर का, पब्लिक अवेयरनेस हो और लोगों को राइट मिले, डिस्क्रिमिनेट नहीं हो। मुस्लिम लेडी को आइसोलेट किया 4 साल तक। We need a law to protect and give them the rights. So don't say no time for liver. I hope you will pledge support to our initiatives which were taken up. Respected and visionary our Speaker Sahab, who got a pledge on World Hepatitis Day. We were supported by Airport Authority and now we are supported by ITC. And I have Rajput Sahab here, who has kindly given a support for this program of empowering people. These are some of our journeys when there was COVID, and then next year where Honorable Health Minister Sahab, Deputy Speaker Sahab were there,
the whole parliamentarians took the oath and pledge. पुराने ज़माने में करीब 1800 साल पहले बिफोर क्राइस्ट लोग लिवर को देख के भविष्य बनाते थे. कोई मंदिर में मूर्ति नहीं होती थी सब. दिस इज बेबीलोनियन टाइम्स. So love your liver, don't insult it, and give your liver. आप प्यार से, our president had pledged his organs, so we can donate at any age. I hope organ donation comes. With this, most humbly, healthy liver, healthy parliament, healthy India. Thank you so much. धन्यवाद डॉक्टर. हेपेटाइटिस जैसी इस गंभीर बीमारी और इससे बचने के उपायों के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए अब सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राज्यसभा के उपसभापति माननीय हरिवंश जी को कि वो हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाएं. माननीय स्पीकर लोकसभा आदरणीय ओम बिरला जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भाई मनसुख मांडविया जी, माननीय अनेक वरिष्ठ सांसदगण हमारे मौजूद हैं, लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, लोकसभा राज्यसभा के अधिकारीगण, मीडिया के हमारे मित्रगण, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस के प्रख्यात डायरेक्टर डॉक्टर एसके सरीन जी, जिनको आपने सुना और जिनके बोलने के बाद शायद इस विषय पर कुछ बताने की बहुत जरूरत नहीं है. उपस्थित मित्रों, आप सबको नमस्कार. आज दुनिया के फ्यूचर चैलेंजेस में पब्लिक हेल्थ एक बहुत सेंसिटिव और बड़ा इश्यू है. पेंडेमिक के दौरान विश्व के लगभग हर व्यक्ति को कोविड वायरस के बारे में जानकारी मिल गई थी. उसके लक्षण सेहत पर क्या होते हैं, परिणाम कैसे तुरंत दिखने लगता है. लेकिन कई कम्युनिकेबल और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां पब्लिक हेल्थ के लिए नियमित खतरा है. हेपेटाइटिस ऐसा ही एक इन्फेक्शन है जिसके बारे में लगातार जागरूकता फैलाने की जरूरत है. मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय स्पीकर साहब का कि पिछले 3 वर्षों से लगातार उनके सौजन्य से वायरल हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में यहां अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज हो रहा है. और खास तौर से डॉक्टर एसके सरीन जी, जिन्होंने पैशन के साथ, मिशन के साथ इस अभियान को लिया है और बहुत एक मैं कहूं कि लेमैन की दृष्टि से सारी चीजों को हमें समझाते हैं और बहुत बेहतर तरीके से एडुकेट करने का प्रयास करते हैं. इसलिए उनके इस काम को हम जितना उनके प्रति धन्यवाद देकर आभार व्यक्त कर सके वो कम होगा. दरअसल यह प्रयास हमें अपने प्रति, अपने आसपास के लिए सजग और जागरूक करने का एक बड़ा अभियान है. इस संबंध में हमारे परसेप्शंस और भ्रम को दूर करने का आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है. कुछ महीनों पहले हमने खबर पढ़ी अखबारों में कि हेपेटाइटिस बी एम्बेसडर कार्यक्रम के तहत डॉक्टर सरीन जी और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रयास से भारत में हेपेटाइटिस बी के कुल मामलों में से लगभग 20 से 30% मामले मां से बच्चों को फैलते हैं. आरंभिक जांच और बेहतर टीकाकरण निश्चित रूप से ट्रांसमिशन के इस तरीके को रोकने में मदद कर सकता है. बीमारी का समय पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जीवन बचाने में काफी मदद करता है. एक मेजर पब्लिक हेल्थ इश्यू होने के बावजूद वायरल हेपेटाइटिस के डायग्नोसिस पर पहले के कुछ दशकों में बहुत निगाह नहीं गई, पर हमने हाल में पिछले कुछ वर्षों से इस बारे में काफी सुनियोजित ढंग से प्रयास शुरू किया है. खासतौर से 2018 में शुरू किए गए राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम ने हेपेटाइटिस के डायग्नोसिस को आम लोगों के लिए बहुत आसान बनाया है. मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि आज देश भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से है जो पब्लिक हेल्थ अप्रोच के तहत हेपेटाइटिस बी और सी के रोगियों को आजीवन मुफ्त डायग्नोसिस और मेडिसिन प्रदान करता है. यह बड़ी बात है, बड़ा प्रयास है.
हमें उम्मीद है कि हम देश के दूर दराज के हिस्सों में भी डायग्नोसिस को आम लोगों तक पहुंचाने में सफल हो पाएंगे। हेपेटाइटिस के इम्यूनाइजेशन कवरेज को बढ़ाने का प्रयास भी और तेज करने की जरूरत है। 2019 में प्रकाशित नेशनल एक्शन प्लान के अनुसार टोटल लाइव वर्ष में हेपेटाइटिस बी बर्थ डोजेस कवरेज को और तेज करने की जरूरत है। विश्वास है टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस कैंपेन से इसमें और प्रगति आएगी। पूरी आबादी को कोविड के खिलाफ टीका लगाने के प्रयास, जो खासतौर से देश में ऐतिहासिक प्रयास हुआ जिसको दुनिया ने गौर किया, कोविन जैसे ऐप का उसमें बड़ा योगदान रहा। यकीन है इसका उपयोग हेपेटाइटिस और अन्य बीमारियों की ट्रैकिंग और इम्यूनाइजेशन कवरेज में भी सुधार के लिए किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यूविन प्लेटफॉर्म, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कवरेज लॉन्च किया। यह एक बड़ा उल्लेखनीय कदम है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग हर गर्भवती महिला को रजिस्टर करने, टीकाकरण करने, डिलीवरी आउटकम को रिकॉर्ड करने, प्रत्येक नवजात शिशु के जन्म को रजिस्टर करने, बर्थ डोजेस देने और उसके बाद सभी टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। यह बड़ा उल्लेखनीय कदम है। उम्मीद है आज के इस अवेयरनेस सेशन से हेपेटाइटिस के बारे में भी सभी को महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस तरह के कार्यक्रम देश के हर राज्य में आयोजित हों ताकि आम जनता के बीच इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़े। खासतौर से मैं अनुरोध करूंगा स्पीकर साहब को कि विधानमंडलों और विधायिकाओं के स्तर पर यह जागरूकता कैसे और जाए, जैसा यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, तो राज्यों के स्तर पर भी निश्चित रूप से इसकी जानकारी फैलेगी। अंत में पुनः मैं माननीय स्पीकर लोकसभा और खासतौर से परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया जी का और डॉक्टर सरीन जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उनके प्रयास से यह लगातार कैंपेन बहुत अच्छी तरह चल पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उपसभापति महोदय। अब बढ़ते हैं आगे और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री माननीय मनसुख मंडाविया जी को कि वो आएं और हेपेटाइटिस पर अपने विचार साझा करें। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे लोकसभा के आदरणीय स्पीकर ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, डॉक्टर सरीन जी, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, सभी उपस्थित सांसदगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, डॉक्टर सरीन साहब ने बहुत विस्तृत रूप में लीवर का महत्व बताया। मैं सचमुच मानता हूं कि लीवर ये हमारा शरीर का लीवर है। जो लीवर पुश करने से गाड़ी स्पीड से भागती है, वैसे जितना हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारा लीवर स्वस्थ होना आवश्यक है। सामान्यतः हम बीमार होने के बाद ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, सरकार भी व्यवस्था करती है। आज हेपेटाइटिस बी का जैसा यहां बताया 3 से 4 से 5 करोड़ देश में पेशेंट है। उसके इलाज के लिए देश में 700 से अधिक हॉस्पिटल में व्यवस्था है। विशेष ट्रीटमेंट के लिए 100 से अधिक हॉस्पिटल में व्यवस्था है। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम भी चल रहा है, मुफ्त स्क्रीनिंग हो रहा है, मुफ्त मेडिसिन मिल रही है। ये तो एक बात है, तो सरकार करती है। सवाल ये है कि ये लीवर की बीमारी ना हो, उसके लिए हमारी कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? हम प्रिवेंटिव केयर के लिए क्या करते हैं? मैं मानता हूं कि अपने में से कई लोग डायरी लिखते होंगे, तो डायरी में हमारी दिनचर्या लिखते हैं, सारे दिन में हमने क्या किया, कल क्या करना है वो भी लिखते हैं। कई लोग मैं देखता हूं जब वॉकिंग में जाता हूं तो वॉकिंग में एक डॉग लेके वॉकिंग करते हैं। कई बार सेठ नहीं होते जिसका डॉग है, लेकिन उसके प्यून उसको वॉकिंग कराते हैं। आप अपने प्यून के लिए केयर लेते हैं, लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अपने स्वयं के लिए केयर नहीं लेते। आप डायरी लिखते हैं, दिनचर्या लिखते हैं,
लेकिन आपके शरीर में दिन में क्या बदलाव हुआ, कंपेरेटिव टू नेक्स्ट डे टुडे क्या बदलाव हुआ, उसके बारे में हम कभी नहीं लिखते। ये रिकॉर्ड हम तैयार नहीं करते। एक बार हम जीने के लिए प्रयास करते हैं, जिंदा रहने के लिए प्रयास करते हैं, चाहते हैं कि हम 100 साल से अधिक जिंदा रहे। कोई बड़े लोग हैं और छोटे लोग उसको मिलते पैर चुनते हैं तो कहते हैं 100 साल जियो भाई। 100 साल जीने का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन 100 साल जीने के लिए हमारा कोई प्रयास ही नहीं है। मैं सरीन साहब का आभारी हूं। लास्ट ऐसे ही कार्यक्रम में मैं स्पीकर साहब को भी आभार प्रकट करता हूं। छोटी बात नहीं है। स्वयं इनिशिएटिव लेके प्रति वर्ष वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं लास्ट बार आया था तो यहां से जाने के बाद स्पीकर साहब तो चले गए, लेकिन मैं रुक गया था एज ए हेल्थ मिनिस्टर। तो सरीन साहब ने मेरा भी स्क्रीनिंग किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका फैटी लिवर 2 ग्रेड है। फिर 3 महीने के बाद मैंने फिर से दिखाया, मैंने कहा भाई 2 ग्रेड है तो उसका इलाज करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया, मैं उसको फॉलो करने लगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, नाउ एंड टुडे माय फैटी लिवर इज 0 कर सकते हैं। ये मेरी जिम्मेवारी है ना, मेरा शरीर को तंदुरुस्त रखना। मैंने इनिशिएटिव लिया, 10 kg वेट लॉस किया। फैटी लिवर 2 ग्रेड से सरीन साहब ने लास्ट बार चेक किया तो कहा कि आपने कमाल कर दिया, 15 साल के बच्चे हैं उसके जैसा आपका लीवर हो गया। तो मैंने लीवर को लीवर दे दिया है। मैं पहले 1 रोटी खाता था, 1.5 रोटी खाता था। अभी मैं सरीन साहब को कहता था कि आप मुझे कम खाने के लिए कहो, सुबह से शाम तक खाने की ही इच्छा होती है। तो उन्होंने कहा कि आपका लीवर ठीक हो गया। इसलिए दोस्तों, मैं मानता हूं कि शरीर का सारा रोग का मूल कोई है और जहां से रोग स्टार्ट होता है वो लीवर है। लीवर को हम तंदुरुस्त रखें, हम तंदुरुस्त रहेंगे और तंदुरुस्त नागरिक तंदुरुस्त समाज का निर्माण करेगा। तंदुरुस्त समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर पाएगा। दोस्तों, समृद्ध राष्ट्र बनाना है तो हमें स्वयं को तंदुरुस्त रहना होगा। यह भी मैं मानता हूं कि नेशन के प्रति हमारा कर्तव्य है। यही हमारा कर्तव्य भाव है। मैं देश को आगे बढ़ाना चाहता हूं, देश के प्रति मेरा कमिटमेंट है। तो पहले एक कमिटमेंट मेरे से शुरू होना चाहिए, क्योंकि मैं देश पर बोझ के रूप में ना जीऊं। मैं मेरा हर पल, हर मिनट, हर घंटा, हर आवर्स, हर दिन देश के विकास के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं और कंट्रीब्यूट करने के लिए मेरे से उपार्जन हो। उपार्जन तब होगा जब मैं स्वस्थ होऊंगा और मैं स्वस्थ तब रहूंगा जब मेरा लीवर स्वस्थ हो। इसलिए लीवर को स्वस्थ रखने का आज का कार्यक्रम आदरणीय स्पीकर साहब ने आयोजित किया, उसको अभिनंदन देता हूं। सरीन साहब ने एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है और वो बहुत पैशनेट है, मेहनत करता है, उसको भी मैं अभिनंदन देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, इस ऊर्जा भरे वक्तव्य से सभी को एक तंदुरुस्त शरीर और लिवर के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हेपेटाइटिस अभियान को लगातार अपना संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। सत्र के उद्घाटन भाषण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय लोकसभा विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर हमारे बीच में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर हरवंश जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण फर्टिलाइजर केमिकल विभाग के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हम भारत एक ऐसा देश बने जिसको हम हेपेटाइटिस बी और सी से मुक्त करें। ये सपना, ये संकल्प, ये विचार लेकर डॉक्टर एस के सरीन जी
मरीजों के इलाज के पहले मरीज हेपेटाइटिस बी सी का ना है, उसके लिए लगातार एक समर्पित भाव से लगातार काम करते हैं। हमारे राजस्थान से हैं और मुझे पता है कि लीवर के अंदर जब कोई बीमारी होती है तो देश में डॉक्टर सरीन को लोग अपॉइंटमेंट के लिए ढूंढते हैं। मेरे साथ भी ऐसा वाकया हुआ। मेरे एक मित्र के फैटी लीवर के कारण बड़ी मुश्किल जिंदगी हो गई थी। डॉक्टर साहब से संपर्क किया और उसके बाद से मैं एक परिवर्तन चेहरे पर देख के लोगों को बता देता हूं कि आपके कहीं ना कहीं लीवर में प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन चेहरे से पता चल जाता है कि शरीर में कहीं ना कहीं समस्या है। लोग सोचते थे एक समय के अंदर कि अल्कोहल से कारण ही लीवर में बीमारी होती है। ये डॉक्टर साहब का प्रयास है जिन्होंने कहा कि अल्कोहल तो एक बड़ा कारण है सही, लेकिन फैटी लीवर और अपने जीवन की दिनचर्या के कारण हेपेटाइटिस बी और सी भी एक बड़ा कारण है। और इसीलिए एक व्यापक अभियान देश भर में चले। आईविलेस और जनप्रतिनिधि मिलकर एक प्रयास करें। हम सब लोग की जिम्मेदारी बनती है। जनता ने हमको चुनकर भेजा है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कारण एक जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने समाज को, अपनी देश की जनता को, अपनी क्षेत्र की जनता को, जो भी देश के अंदर संभावित बीमारियां हैं और बीमारी होने के कारण हैं, उसके लिए वह संदेश उस मतदाता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए। और ये काम अगर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि एक काम की जिम्मेदारी ले कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि मैं मेरे क्षेत्र की जनता को स्वस्थ रखूंगा, और इसके लिए संकल्प के साथ काम करें, तो हम हमारे देश को दुनिया में सबसे स्वस्थ देश बना सकते हैं। और ये संकल्प हमारा होना चाहिए। बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर भारत जब हर चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है, हर चुनौतियों का समाधान कर रहा है। हमने कोविड महामारी जैसी बीमारी के समय भी हमने हमारा वैक्सीनेशन डेवलप किया। हमारी सामूहिक कार्य संस्कृति से, सामूहिक प्रयासों से इतने बड़े देश के अंदर हम कोविड को रोकने में काफी हद तक कामयाब हुए। उसी तरीके से स्वास्थ्य के प्रति लगातार प्रयास एक बहुत जीवन में आवश्यक है। और इसीलिए जब डॉक्टर साहब मुझसे मिले तो मैंने कहा कि निश्चित रूप से संसद लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आपके प्रयासों को आगे बढ़ाएं और इस देश के अंदर जितनी संख्या लीवर डिजीज के कारण, सोरेसिस के बाद लीवर कैंसर, लीवर का प्रत्यारोपण तो हो रहा है, लेकिन उस स्थिति तक कोई ना आए। उस गरीब व्यक्ति के जीवन के अंदर मैंने देखा है कि एक बार लीवर ट्रांसप्लांट के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है।
उसकी जिंदगी की सारी कमाई सब कुछ उसमें चल जाती है। अगर हम उसकी अवेयरनेस पहले से पैदा कर दें, जैसे ही उसके लक्षण नजर आए हम उसकी इलाज शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से उस स्थिति तक पहुंचने में हम कामयाब हो पाएंगे और लीवर बीमारी को रोकने में कामयाब हो पाएंगे। और इसीलिए डॉक्टर साहब ने आज शॉर्ट में बताया, लेकिन मेरा आग्रह रहेगा कि मैं फिर प्रयास करूंगा, सभी जनप्रतिनिधियों से फिर आग्रह करूंगा कि जनप्रतिनिधि सारे देश की जितनी भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों, चाहे स्वास्थ्य की चुनौतियां हो, चाहे सामाजिक जीवन में और चुनौतियां हो, उन चुनौतियों के बारे में जनप्रतिनिधि को जानकारी होना चाहिए। जितना अवेयरनेस और जितनी जानकारी युक्त अगर जनप्रतिनिधि होगा, उतनी ही अपनी जनता को अपने संदेश के माध्यम से वो हर क्षेत्र के अंदर हर विपदा, हर चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम बनाएगा। स्वास्थ्य क्योंकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति लोग गंभीर भी हुए हैं। कोविड के बाद तो विशेष रूप से दूर दराज के गांव के अंदर भी स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं। सरकार ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया है। और इसीलिए इस बदलते परिप्रेक्ष्य में हम और किस तरीके से, जितने भी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एक संकल्प का दिन होना चाहिए। अभी तक जो डॉक्टर साहब का मिशन है, हमारा मिशन है कि नीचे पंचायत के जनप्रतिनिधि, जो गांव में सरपंच है, सरपंच के बाद पंच है, हर जनप्रतिनिधि को अगर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर जिस तरीके से और कार्यक्रम करते हैं, हम हमारे क्षेत्र की जनता को बुलाकर अगर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम करें तो एक बड़ा काम देश में हो सकता है। और ये बड़ा काम हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए मैं डॉक्टर सरीन के प्रयासों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और अभी आपने स्वास्थ्य मंत्री जी को देखा, जब स्वास्थ्य मंत्री जी का फैटी लीवर आया तो उन्होंने संकल्प लिया और मुश्किल से 4-6 महीने बाद ही उन्होंने फैटी लीवर को ब्रेक में कर दिया। और आज देखें आप, उनके वजन को देखें, कई बार हमें लगता है कि बहुत कम वजन हो गया, तो हम कहते भी हैं। लेकिन व्यक्ति अपने जीवन के अंदर स्वस्थ रहना चाहता है तो क्यों नहीं प्रयास करता? ये हमें सोचने की आवश्यकता है। और इसीलिए जब जनप्रतिनिधि जो नेतृत्व कर रहा है इतने मतदाताओं को, अगर वही स्वस्थ नहीं रहेगा तो अपनी जनता को कैसे स्वस्थ रख पाएगा? और इसीलिए हम समय समय पर प्राइड, हमारी संस्था जो है, वो लगातार ये प्रयास करती रहती है। जो भी ऐसे गंभीर विषय हैं, चुनौतीपूर्ण विषय हैं, उसके लिए हमारी लोकसभा की संस्था, उनके अधिकारी लगातार प्रयास करते हैं कि हम जो कुछ भी एक्सपर्टाइज की जानकारी है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हम किस तरीके से लोगों के जीवन को बेहतरीन कर सके, खुशहाली कर सकें, ये लोकतांत्रिक संस्था के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। मुझे आशा है आप सब आज यहां संकल्प लेकर जाएंगे और इस विचार को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। और हर वर्ष हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर मूल्यांकन करेंगे कि हम जो हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य के कहां तक पहुंचे। जब हम हर कार्य को हर साल मूल्यांकन करेंगे और एक दिन ये तय करेंगे कि भारत से हेपेटाइटिस बी और सी को समाप्त करना है, तो निश्चित रूप से हमारा संकल्प पूरा होगा। आज हमारी यही प्रतिज्ञा है कि हम सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक कार्य से एक दिन वो आएगा जब देश के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी का कोई मरीज नहीं होगा और डॉक्टर साहब का सपना भी उस दिन पूरा होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। हेपेटाइटिस अभियान को संरक्षण प्रदान करने, गति प्रदान करने और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अब माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध है संसद भवन परिसर में पिछले वर्ष के आयोजन की स्मृति पुस्तक और साथ ही ILBS के अभियानों पर लिवर पिक्टोरियल सीरीज का विमोचन करें। ये हैं एक की ओर को लिवर की बीमारियों हेपेटाइटिस बी संबंधित मुद्दों के प्रति और बनाती है। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों करती हूँ माननीय लोकसभा अध्यक्ष के साथ प्रतिज्ञा लें भारत को मुक्त बनाने में शामिल हों। प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपने लीवर को स्वस्थ रखने की कोशिश करूंगी। मैं अपना अपने परिवार का परीक्षण और टीकाकरण कराऊंगा। मैं हेपेटाइटिस पर अपने सहयोगियों के साथ संवाद करूंगा। मैं 10 लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी दूंगा। मैं हेपेटाइटिस पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। मैं लोगों को हेपेटाइटिस के खिलाफ सशक्त बनाने में योगदान दूंगा। धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव नीरज सेमवाल जी और विशिष्ट अतिथियों के अमूल्य समय और मार्गदर्शन के लिए उन्हें धन्यवाद अर्पण करें। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर यहां पर जागरूकता सत्र में अपना समय देने हेतु मैं माननीय अध्यक्ष लोकसभा, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार, माननीय उपाध्यक्ष राज्यसभा, माननीय महासचिव लोकसभा, निदेशक ILBS, माननीय सांसदगण एवं समस्त अन्य गणमान्य व्यक्तियों कार्यक्रम में आने हेतु अपना आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद। सभी विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध है कि वे बैंक्वेट हॉल की ओर